morning, one and all. It gives me immense pleasure to extend a warm and hearty welcome to everyone gathered on this beautiful morning for the annual Sports Meet 2025 of Government Higher Secondary School, Likavali. First and foremost, we are deeply honored to welcome our chief guest, Sri Yumpa Taipodia, a renowned business tycoon and esteemed president of Mita Welfare Society. Sir, your presence today truly inspires our young students to dream big, strive for excellence not only in academic but also in all spheres of life. We are equally privileged to welcome our guest of honor, Sri Tom Tajuji, the respected president of all Lower Siang District Student Union. So your constant encouragement and dedication towards the community welfare and the youth development serve as a great motivation to all of us. I also take this opportunity to extend a warm welcome to all our special invitees, Ms. Rumi Rai, reporter, Zoom Digital Media, Mr. Bomter Tau, state level football referee, our dedicated teaching and non-teaching staff of Government High Secondary School, Likavali, and our energetic and enthusiastic students who are the heartbeats of today's event. Sports, as we all know, play a vital role in shaping the character of youth. It teaches discipline, teamwork, determination, and above all, the spirit of fair play. This annual sports meet is not mere a competition, but a celebration of health, happiness, and harmony, where every participation is already a winner, showing the courage to compete and give their best. To encourage healthy competition and strengthen camaraderie among our students, our school has divided into 4 houses: Kaveri House, Yamuna House, Narmada House, and Godavari House, each representing the vibrant flow of the energy, dedication, and determination, much like the greater river they are named after. Let us make this event a memorable one with active participation, healthy competitions, and cheerful sportsmanship. Once again, I, on behalf of organizing committee and on behalf of the Likavali GHS Likavali family, I extend a warm welcome to our distinguished guests and everyone present here. Let the annual sports meet 2025 begin with great sportsmanship spirit. एनुअल स्पोर्ट्स मीट परेड को मान से गुजरने की आगे प्रदान करें। जय श्रीमान। एनुअल स्पोर्ट्स मीट को हमारा ट्रूप कमांडर हम लोग का यूथ स्पेशली स्टूडेंट को हम 1-2 एडवाइस देंगे। आज यहाँ पे हमको अच्छा मौका मिला आप लोग को 1-2 तो वर्ड एडवाइस देने के लिए। यहाँ पे टीचर्स लोग तो काफ़ी एक्सपीरियंस है और यहाँ पे जितना गेस्ट आया है उन लोग भी एक्सपीरियंस है, उन लोग का लाइफ को जी चुका है। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनिएगा। हम लोग का लाइफ में आगे बढ़ना है तो हम लोग क्या सोचता है, हम लोग गरीब है या हम लोग बस्ती से आके यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप लोग को भी बड़ा होने से मौका मिलेगा, समय पे पढ़ाई करना चाहिए। आप लोग समय के अनुसार समय को अच्छा से इस्तेमाल करना है। आप लोग का अभी पढ़ने का समय है, इस समय में पढ़ाई को ध्यान देना है। नॉर्मली सब आदमी बोलता है पढ़ाई को ध्यान देना है, टीचर भी बोलते रहता होगा स्कूल में पढ़ाई को ध्यान देना है बोल के। आप लोग पढ़ाई को ध्यान देने से क्या होगा, अभी आप लोग का पढ़ने का समय है, इसका बाद में नेक्स्ट में फिर आप लोग का इंडिविजुअल लाइफ आना शुरू करेगा। उस समय में जो आदमी अपना समय को अच्छा से इस्तेमाल नहीं करेगा उनको तकलीफ मिलेगा।
मैं सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तालियां बजते रहें। मैं स्टूडेंट जितना भी है, आप लोग तालियां बजते रहिए जब तक हमारा ये टॉर्च बेयरर मंच पर प्रैक्टिस एंड पैशनेट बाय बोथ द स्टूडेंट एंड द टीचर। Swear on oath that I promise to participate in the true spirit of sportsmanship with respect, fairness and integrity in all my action, and strive for excellence, pushing beyond my limits to take my school, teammate and my family proud. I pledge to uphold the value of teamwork, discipline and fair play, and conduct myself with honor and dignity throughout this annual Sports Meet 2025. Your presence really cheered us, inspired us, lot of encouragement, lots of energy, and lot of sportsman spirit. So for that we really extend our thanks once again, both chief guest of honor and other invitees. Then towards student, इस बार स्टूडेंट लोग सुन रहा होगा, डिसिप्लिन कहाँ से शुरू होता है? डिसिप्लिन बिगिन फ्रॉम गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स से डिसिप्लिन शुरू होता है। डिसिप्लिन अगर इफ़ यू आर डिसिप्लिन तो इंटरनेशनल नेशनल मेडल मिलना ये तो बहुत पॉसिबल होता है। बट विदाउट डिसिप्लिन आपका टीम जितना अच्छा खेलने से भी, अच्छा करने से भी, अगर डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं करता है तो गोल्ड मेडल मिलना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो स्टूडेंट लोग को मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बी डिसिप्लिन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इन एनी एक्टिविटीज़, सो दैट यू मे विन, यू मे क्लेम ऑन द टॉप ऑफ द विक्ट्री। देन एक है मैं आज का चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर, द अदर इन्वाइटीज, देन दूसरा लेडीज एंड जेंटलमैन को भी ये मन से एक मैसेज पास करना चाहता हूँ, क्योंकि दिस ईयर CBSE गाइडलाइंस इज़ वेरी डिफरेंट। CBSE का गाइडलाइंस ऐसे बनाया है कि नोबडी कैन चैलेंज इट। ऐसे बनाया है अब इफ़ यू पास ऑल 5 सब्जेक्ट इन थ्योरी बट फेल इन अदर एक्टिविटीज़, रिजल्ट विल डिक्लेयर फेल, ऐसे बना दिया। तो इसीलिए अपना गौर का ये गौर में बच्चा लोग को भी ठीक से ये मैसेज को पास कर देना है। हम लोग तो स्कूल में तो ऑडियो का थ्रू से सुनाया गया है स्टूडेंट लोग को। तो ये एक्टिविटीज़ में भी कल्चरल बोलिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स बोलिए, लिटरेरी बोलिए, तो उसमें भी वो बच्चा पास होना पड़ेगा। देन ओनली 10 एंड 12 का रिजल्ट पास डिक्लेयर किया जाएगा। अदरवाइज आप 100 से 100 मारने से भी बाकी एक्टिविटीज़ में फेल है, दैट इज़ फेल। तो दैट इज़ वाई स्टूडेंट लोग भी
ध्यान से वो इन लोग तो जानकारी हो गया, बट देन फ्रॉम दिस stand I once again send this message especially to my parents, my SMC member, SMDC member for White Public City. So once again मैं last but not the least, once again I extend my heartiest thanks to today's chief guest, guest of honor and other dignitaries for encouraging us in this very gracious opening ceremony of our annual sports day meet 2025. As a student leader of the concerned district, हम कुछ थोड़ा सा पॉइंट्स हम रखना चाहेगा आज, क्योंकि हर समय स्टूडेंट्स को मिलने का मौका भी नहीं मिलता है और टीचर का तुम चिंकार ही नाम समय पामुम माधोई तक लगा आगमन पॉइंट वाइज पे जावरब दामा हम एक चीज़ हम बताना चाहेगा। सबको पता है आज सोशल मीडिया में जो वेरियस स्कूल्स आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट का जितना न्यूज़ आ रहा है, आप सब पता है कि रैगिंग, जो रेप, जो मोलेस्टेशन का जो इशूज़ चल रहा है हमारा अरुणाचल में, तो इसको लेके थोड़ा सा हम आज इस मंच का एडवांटेज लेते हुए हम कुछ बताना चाहेगा, हम बोलना चाहेगा। तो हम देखा है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसा अभी तक तो टिल हम लोग का टेन्यूर में ऐसा कुछ तो अभी तक न्यूज़ तो नहीं आया है। फिर भी ये प्लेटफॉर्म का जरिए में जितना भी यहाँ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का जितना भी प्राइवेट स्कूल्स, जो गवर्नमेंट स्कूल्स, जितना भी हॉस्टल्स है, जो हॉस्टल्स अटैच है, उन सब का ओनर्स और प्रिंसिपल्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। और मैं ओनर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने स्कूल तो बना दिया, लेकिन कोई साउथ इंडियन या कोई बाहर जो आदमी है उसका हाथ में नहीं सौंपना है, आप हमेशा निगरानी करना है। और मैं जितना भी हमारा बाहर का जितना भी नॉन APST जो टीचिंग स्टाफ है, स्पेशली जो प्राइवेट स्कूल्स में एंगेज करके रखता है, उन सब को भी मैं बोलना चाहूँगा, इस तरह का माइंडसेट और इस तरह का मेंटेलिटी हमारा डिस्ट्रिक्ट में लेके नहीं आना है। कल को अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट में ये सब डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का नॉलेज में आता है, तो आप याद रखना है, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग जो हम लोग ईगल्स आई बन के यहाँ एवरी स्कूल को निगरानी करता है। ऐसा नहीं कि हम लोग डेली विजिट नहीं करता है, ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग हर अपडेट को हम लोग लेके रखता है। तो कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो बुरा नहीं मानना है, हमको पनिशमेंट दिलाने के लिए हम DSU कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा।
और जितना भी प्राइवेट स्कूल्स का ओनर्स है उन सबको भी मैं बोलना चाहूँगा कि कल को ऐसा नहीं होना है कि हमको पता नहीं है, टीचिंग स्टाफ्स ने किया या कोई स्टाफ्स ने किया, इस तरह का स्टेटमेंट कल को DSO हम सब नहीं मारेंगे। ये मेरा स्ट्रॉन्ग मैसेज रहेगा। First of all, I would like to extend a special thanks to our chief guest, Sri Yumpa Taipodia, for gracing us with their presence and for their untiring works. I also like to thanks to this guest of honor, Sri Tom Taju, President of Lower Siang District Student Union, for accepting our invitation. A big thanks to all the esteemed guests for sparing your valuable time for this event. My sincere thanks goes to our principal sir for their guidance and support in making this event possible. I would also like to thank our dedicated teachers and students coordination committee headed by school captain Master Pakjom Taipodia, who worked tirelessly for making this event success. My gratitude goes to the organizing committee headed by our organizing chairman Sri Rigo Tao and all the staff who worked behind the scene to ensure everything went smoothly. Finally, a heartfelt thanks to all the judges of Mega Dance. चला गया वो लोग. और I would like to thank the Zoom Digital Media, Rumi, और आज का हम लोग का फुटबॉल का रेफरी बोमतर ताओ, आपको भी many thanks. So here I conclude my word of thanks speech. Thank you. ऐसा तो बहुत अच्छा लगा है आके, आपका स्कूल में ये सब सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा लोग खेल सके और अपना टैलेंट को दिखा सके और यहाँ से फिर आगे जा सकने के लिए। एक्चुअली सबसे आगे पढ़ाई को तो ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि पढ़ाई से ही आप आगे जाएंगे और उसका साथ में गेम्स एंड स्पोर्ट भी बहुत ज़रूरी है आपका हेल्थ के लिए। और इसमें भी आजकल बहुत सा फैसिलिटीज़ है गेम्स एंड स्पोर्ट से, आपका बहुत खोटा है गवर्नमेंट का भी और गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करता है। गेम्स एंड स्पोर्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, उसके साथ साथ में पढ़ाई भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सर आपने आपके कथन में ये जिक्र किया था ये जो स्कूल का जो ज़मीन को लेके जो मनमुटाव चल रहे हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसको तो मैं साफ शब्द में कहना चाहूँगा कि स्कूल का ज़मीन कोई भी एनक्रोच नहीं करना चाहिए और स्पेशली मेरा सोसाइटी एनक्रोच करने भी नहीं देगा किसी को भी, ताकि ये स्कूल जो है हम लोग एरिया का फ्यूचर है, तो इसका ज़मीन को हम लोग सही ढंग से रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं जो हाई सेकेंडरी का जो स्कूल अथॉरिटी है हेडेड बाय प्रिंसिपल मारा सर, उसको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे आज का जो
एनुअल स्पोर्ट्स मीट में याद किया। तो एज ए स्टूडेंट लीडर मैंने अपना स्पीच में भी बोला है कि एज ए स्टूडेंट कि सबसे पहले तो स्टूडेंट को एक डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना है और आपका जो है क्लासेस मिस नहीं करना है और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने का कोशिश करना है। क्योंकि टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स हमने देखा है कि बनता तो है लेकिन होता है कि कोई अच्छा ह्यूमन बीइंग्स नहीं बन पाता है। तो मैं एज ए स्टूडेंट लीडर मेरा स्टूडेंट्स कम्युनिटी को एक एडवाइस रहेगा कि आप सोशलाइज होना है, एक रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बनना है। तो मेरा तरफ से ये एक एडवाइस रहेगा। तो सर, जैसे कि आपने अपने कथन में ये जिक्र किया था कि जो लेटेस्ट न्यूज़ हमें सुनने को मिली है, एक स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरीके से बुली किया गया, मोलेस्टेशन किया गया, तो इसके विषय में जो जस्टिस डिले हो रही है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी भी कहा है कि इस तरह का हमारा जो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सा ऐसा केसेस देखने को मिल रहा है आज का डेट में। तो जो हम अरुणाचल गवर्नमेंट को भी मैं यही मेरा तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा, अपील रहेगा कि जल्द से जल्द जस्टिस मिलना चाहिए। और मैं जितना भी यहाँ अरुणाचल का स्पेशली इन जनरल और इन पर्टिकुलर में मेरा डिस्ट्रिक्ट का जितना भी स्कूल्स है, चाहिए वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सबको मेरा तरफ से एक अपील रहेगा, एक रिक्वेस्ट है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज रहेगा। जितना भी स्कूल ओनर्स है, अथॉरिटीज़ है, निगरानी रहना है। अभी कुछ रिसेंट हमारा नियर बाय डिस्ट्रिक्ट रोइंग का इंसिडेंट भी को भी आप ले लीजिए। ऐसा हमारा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल होना नहीं चाहिए। अगर किसी का माइंडसेट इस तरह का अगर कोई टीचर अगर करता है इन फ्यूचर, तो आप देख लीजिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन स्टूडेंट्स कम्युनिटी का पीछे खड़ा है। लो बाद में लो क्या करेगा वो तो लो का ऊपर हम लोग छोड़ देगा, लेकिन अगर इस तरह का अगर कोई हेनियस क्राइम हमारा डिस्ट्रिक्ट में होगा, सबसे पहले DSU जो अपना तरफ से जो एक्शन लेना है वो हम लेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ जो भी स्कूल अथॉरिटीज़ और ओनर्स है, अपना स्कूल को आप निगरानी करना है, सुबह शाम चेकिंग करना है। स्कूल जो स्टूडेंट्स है, जो हॉस्टलर्स है, उनका साथ में आप मेल मिलाओ जो लगाव रखना है कि पूछताछ करना है। ऐसा नहीं कि कोई प्रिंसिपल कहीं बाहर स्टेट से आ गया, बना दिया, उसका ऊपर छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। कल को ऐसा कुछ हेनियस क्राइम हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं होना है। तो ये मेरा तरफ से एक मैसेज रहेगा। Organizing sports annual sports day meet is our academic year calendar. It is very mandatory. So in every academic year we have to organize such kind of sports meet so that the student can show their hidden talent and they may go further for national, international medal, etc. So only studying bookish knowledge, that is not enough for a student. So there are many sources from these games and sports. So lots of examples are there. So keeping that view, we always yearly we organize such kind of sports meet only for the sake of the school going children for their future. So any suggestion for participants? Suggestion we always used to say from games and sports, always discipline always begin from games and sports in any kind of this sports event. So my message to the student is that always be disciplined, and if you are disciplined, your team will win. You will individually you will also claim on the top of the victory if you are disciplined. So that is my message.